Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 What a joy to see everyone and greet you in the name of the risen Lord, Jesus Christ. आप में से प्रत्येक को देखकर कितना आनंद आ रहा है और मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबका अभिनंदन करता हूं। Jesus Christ is altogether lovely. यीशु मसीह अत्यंत सुंदर है। He is glorious. वो महिमा से भरा हुआ है। He is wonderful, overflowing with wonder. वो अद्भुत से भरा हुआ है और उमंडता हुआ है। He is compassionate Christ. वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। And the most beautiful thing is, we are all in different places and Jesus is the center. और सबसे खूबसूरत बात यह है, हम अलग अलग विभिन्न स्थानों में हैं, लेकिन हमारे केंद्र में यीशु मसीह है। Jesus Christ is seated on his mercy seat and we are all around the mercy seat, fellowshipping together, looking to him and waiting to listen to his voice. और यीशु मसीह अपनी दया की कुर्सी पर विराजमान है और हम सब उसकी दया की कुर्सी के चारों तरफ हैं और उसकी दया के लिए, दया को पाने के लिए ठहरे हुए हैं। We give Jesus all the praise, all the glory, all the worship. और हम प्रभु यीशु मसीह को सारी स्तुति, सारी प्रशंसा और सारी महिमा देते हैं। Our eyes are on him. हमारी आंखें उस पर हैं। We worship him. और हम उसकी आराधना करते हैं। And now let us pray a small prayer and get into the word that he has kept for us today. और अब हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको सुनेंगे। Lord, we are so grateful to you for this opportunity to come together from all over the world at your mercy seat. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये बहुत सौभाग्य दिया है, अवसर दिया है कि हम संसार के विभिन्न स्थानों से मिलकर जमा होके आपके दया की उस सिंहासन के पास में आ सके हैं। The Bible says that you always spoke from the mercy seat. बाइबल बताती है कि आप हमेशा उस दया के सिंहासन से बात करते हैं। Tonight, speak to us, Lord. आज रात आप हमसे बात करें। Show us your heart. अपना हृदय हमें बताएं। Show us your will for your people in the last days. इन अंत के दिनों में आपका जो हृदय है, वो आप अपने लोगों को बताएं। Pour out your spirit upon every one of us. हम में से प्रत्येक पर अपनी आत्मा को उंडेल दें। Let there be a mighty outpouring of the Holy Spirit everywhere where people are connected. आज जहां जहां से भी लोग हमसे जुड़े हैं, उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा बहुत तायत से उंडेल दिया जाए। Let it be a Holy Spirit meeting tonight. आज रात होने दे ये पवित्र आत्मा की सभा हो। Holy Spirit revival. पवित्र आत्मा की जागृति, Miracles and healings. आश्चर्य कर्म और चंगाइयां, Supernatural signs and wonders. अलौकिक चिन्ह और अद्भुत काम, And above all, a mighty visitation of God in everyone's life. उन सबसे बढ़कर प्रत्येक को प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर से, सामर्थी परमेश्वर से मुलाकात हो सके। Lord, come to your people. प्रभु, आप अपने लोगों के पास आए। Lay your hands upon us. अपना हाथ हम पर रख दें। Transform our spirit, soul and bodies. हमारे आत्मा, प्राण और देह को बदल दें। Let us experience your powerful touch. हम सब आपके सामर्थी स्पर्श को पा सकें। Speak to us, Lord, and we will listen. आप हमसे बात करें और हम सुनेंगे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I pray God's blessings on all those who have organized these meetings. और
इस सभाओं का जितनों ने आयोजन किया है, मैं उन सब के लिए प्रभु की आशीष कहता हूं, and God's blessings on all who are connected. और जितने इससे जुड़े हुए हैं उन सब से के लिए भी मैं आशीष कहता हूं. Now the title of our message tonight, आज रात के लिए हमारे संदेश का शीर्षक है God's will in these last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा. Oh, what a topic. क्या अद्भुत शीर्षक है. I liked what Bishop Frederick Ryborde said. बिशप फ्रेडरिक रायबोर्डे ने जो कहा वो मुझे पसंद आया. We should not get ready for the coming of the Lord, but we should be ready for the coming of Jesus. हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए ही सिर्फ तैयार नहीं होना है, लेकिन हमें यीशु के आने के लिए तैयार होना है. We should be ready, not in the process of getting ready. हमें तैयार होने के प्रयास में तैयार नहीं होना है, पर यीशु के आने के लिए तैयार होना है. तैयार रहना है. तैयार रहना है. तैयार होना नहीं है, तैयार रह, not in the process, but ready. हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है. 5 foolish virgins were getting ready. Wise virgins were already ready. 5 मूर्ख तैयार हो रही थी, लेकिन 5 बुद्धिमान तैयार थी. Yes. We should be ready. हमें तैयार रहना है. Even now, if Jesus comes, we are ready. यदि अभी प्रभु आ जाए, यीशु आ जाए, तो हमें तैयार रहना है. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? आप तैयार हैं? Amen. Okay, let's get into the message today. आइए हम संदेश में चलें. You know, the title made me to pray, to seek God. शीर्षक जो मुझे मिला है, उसने मेरे को प्रार्थना में ले गया. It is not just what is God's will, but it is God's will in these last days. सिर्फ परमेश्वर की मर्जी नहीं, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर की मर्जी. Yes, what is God's will in these last days? इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की मर्जी क्या है? What is God's will? परमेश्वर की इच्छा क्या है? You know, there are so many things to learn. बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए. This is such a wide subject. एक बहुत बड़ा विषय है. What is God's will in these last days? इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है? Many things. बहुत सारी बातें हैं. But I have centralized to just one main thing. लेकिन उन सब में मैंने सब बातों को केंद्र में लेके आके एक बात आपके लिए लाया है. So I will tell in one line what is God's will for these last days. तो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे मैं एक लाइन में आपसे कहूंगा. Especially for you and me. विशेष तौर से आपके और मेरे लिए. Especially for his church. विशेष तौर से उसकी कलीसिया के लिए. What is God's will in these last days? इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की मर्जी क्या है? That will be the first part of my message. और वो मेरे संदेश का पहला हिस्सा होगा. Then the second part of my message will be, how will God do it? और मेरे संदेश का दूसरा हिस्सा होगा, परमेश्वर उसको कैसे करेगा. So let's get into the message. तो आइए हम परमेश्वर के संदेश में चलें. What is God's will in this last days? इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है? Especially for his people. विशेष तौर से उसके लोगों के लिए. Please listen. मेहरबानी से सुने. It is God's will to reveal his glory through his church in these last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी महिमा को अपनी कलीसिया के द्वारा प्रकट करे. God wants to reveal his glory in these last days through his people. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है. Through his people. अपने लोगों के द्वारा.
through you, through me. आपके द्वारा, मेरे द्वारा, You are his church. आप उसकी कलीसिया हैं। We are all his church. हम सब उसकी कलीसिया हैं। All blood-washed people. हर एक लहू से धुले हुए लोग। God wants to reveal his glory. परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। You know, God created Adam and Eve. आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, Created them in his own image. अपने स्वरूप में उनको बनाया। One side to have fellowship with them, एक तरफ उनके साथ संगति करने के लिए, intimacy with them. उनके साथ अंतरंगता, Another side, लेकिन दूसरी तरफ to fill the earth with his glory through them. उनके द्वारा इस पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा से भर दे, To reveal his glory through them. अपनी महिमा को उनके द्वारा दिखाए, प्रकट करे। That is the reason. ये है कारण। To minister to him one side and to minister to people. एक तरफ उनके को मिनिस्टर करे और दूसरी तरफ उनको, उनके द्वारा लोगों को। God's deep longing has always been to fill this earth with his glory. परमेश्वर की एक गहरी इच्छा थी, अंदर की इच्छा थी कि वो इस पृथ्वी को अपनी महिमा से भर दे। And he wanted to do it through his people. और वो इस काम को अपने लोगों के द्वारा पूरी करना चाहता था। Yes, and he wants to do it through his people. और अपने लोगों के द्वारा उसको पूरी करना चाहता है। Now, when I'm telling that he wants to reveal his glory, जब मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहा है, I'm not just talking about revealing some light, revealing some cloud, revealing some fire. No. These are the manifestations, but I'm not talking about this. हाँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, तो उससे मेरा मकसद ये नहीं है कि कहीं थोड़ी सी रोशनी चमकेगी, कहीं थोड़ा सा बादल आएगा या कहीं थोड़ा सा कुछ दूसरी बात होगी। ये सब तो है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। No, when I'm talking about revealing his glory, I'm talking about revealing his character, his nature. जब मैं उसकी महिमा को प्रकट करने की बात कर रहा हूं, तो मेरा मत कहना है उसका चरित्र, उसके स्वभाव का प्रकट होना। God's deep desire has been to reveal his nature, his character, his wisdom, his power through his people. और परमेश्वर का अपनी महिमा को प्रकट करने का मतलब है उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके अंदर की जो बात है, स्वभाव है, महिमा है, उसको प्रकट करना। He wants to reveal his power, his wisdom. वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को प्रकट करना चाहता है। That's why he created mankind. इसीलिए उसने मानव जाति की सृष्टि की। But then, the entire mankind fell and came short of the glory of God. लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य, पूरी मानव जाति जो है वो पाप में गिर गई और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई। When God wanted to destroy the Israelites because of their sin at Mount Sinai, जब सीने पर्वत पर परमेश्वर इस्राएली लोगों को उनके पाप के कारण नाश करना चाहता था, Moses was interceding. मूसा मध्यस्थ कर रहा था। So what did God tell? तो परमेश्वर ने क्या कहा? God said, okay, Moses, परमेश्वर ने कहा, ठीक है मूसा, I have pardoned, I have forgiven their iniquities. मैंने उनको क्षमा कर दिया, उनके अधर्म को क्षमा कर दिया। But one day the earth will be filled with my glory. पर एक दिन सारी पृथ्वी मेरी महिमा से भर जाएगी। He created Adam and Eve to reveal his glory. उसने आदम हव्वा को बनाया ताकि अपनी महिमा को प्रकट करे। They failed. वे असफल हो गए। He made the nation of Israel to reveal his glory. उसने इस्राएल देश को बनाया ताकि अपनी महिमा को उनके द्वारा प्रकट करे। But they also failed. लेकिन वे भी असफल हो गए। But in spite of these failures, God said, इन सब असफलताओं के बावजूद परमेश्वर ने कहा,
don't be mistaken. I will still reveal my glory. हाँ, बोला फिर भी ध्यान रखना, मैं फिर भी अपनी महिमा को प्रकट करूंगा. This earth will be filled with the glory of God. ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी. This will be filled with the knowledge of the glory of God. परमेश्वर के ज्ञान की महिमा से भर जाएगी. Adam and Eve failed. आदम और हव्वा असफल हो गए. Nation of Israel failed इज़राइल देश असफल हो गया to reveal my glory. मेरी महिमा को प्रकट करने में. But my last day church is coming लेकिन मेरे अंतिम दिन की कलीसिया आ रही है. without spots and without wrinkles. ओ जो बिना दाग और बिना झुर्री के है. My glorious church is coming. मेरी महिमा से भरी हुई कलीसिया. My bride is coming. मेरी दुल्हन आ रही है. Through my church, end time church, I will reveal my glory. अपनी कलीसिया, अपने अंतिम दिनों की कलीसिया के द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा. And I will fill this earth with the knowledge of my glory. और मैं इस पृथ्वी को अपनी महिमा के ज्ञान से भर दूंगा. The will of God in this last days इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा is to reveal his glory through you and me to this world. परमेश्वर की इच्छा है कि आपके और मेरे द्वारा अपनी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करे. To fill this earth with his glory through his church. अपनी महिमा से इस पृथ्वी को भर दे अपनी कलीसिया के द्वारा. What is his glory? उसकी महिमा क्या है? His nature, उसका स्वभाव, his character, उसका चरित्र, his wisdom, उसकी बुद्धि, his power, उसकी सामर्थ, his love, उसका प्यार, his long suffering, उसकी सहनशीलता, his graciousness, उसका अनुग्रह, his patience, उसका सहनशीलता, धीरज, his mercy, उसकी दया, his innocence, उसकी मासूमियत, his purity, उसकी शुद्धता, his holiness, उसकी पवित्रता, his faithfulness, उसकी विश्वास योग्यता, his steadfastness, उसकी दृढ़ता, his unchanging nature, उसका ना बदलने वाला स्वभाव, his lowliness, उसकी नम्रता, his meekness, उसकी दीनता, oh, his servant's heart, उसका सेवक का हृदय, his big heart of love for his people, उसके अपने लोगों के लिए उसके बड़ा हृदय, his nature which he revealed on the cross, उसका वो स्वभाव जो उसने क्रूस पर दिखाया, his nature he revealed when he saw the sick and suffering people. जब उसने बीमार और दुख से भरे हुए लोगों को देखा, तब जो उसका स्वभाव उसने प्रकट किया. His nature when he saw the broken-hearted. टूटे हृदयों को देखा, उस समय जो उसका स्वभाव था. When he saw the sinners. जब उसने पापियों को देखा. All this nature he wants to reveal. ये सारा स्वभाव वो प्रकट करना चाहता है. Jesus is none other than the revelation of God's nature. यीशु मसीह और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का चरित्र का प्रतिरूप है. He is the express image of God's glory and the brightness of his person. वो परमेश्वर की महिमा और उसके तेजस्वी स्वरूप का प्रतिरूप है. Oh, he is the express image of his person. उसके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है. He is the original image of God. वो परमेश्वर का असली प्रतिबिंब है. In his image we are created. उसी स्वभाव में हम बनाए गए हैं. The image of God got distorted in the garden. बगीचे में परमेश्वर का स्वभाव खराब हो गया. In the garden of Eden, God, Jesus gave his life and said, "Not your will, my will," to restore the image. लेकिन गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो. Now the image of God is restored and is coming to fullness. लेकिन अब परमेश्वर की स्वभाव इच्छा जो है फिर से बन रही है और अब प्रकट होने जा रही है. His image is coming to fullness. उसकी स्वरूप जो है वो पूर्णता में आ रही है. No, his image is once again going to show forth the glory of God.
उसका स्वरूप जो है फिर से एक बार परिपूर्णता में लोगों के सामने दिखाई देगा. One side, his image is going to show forth that intimacy with God. Another side, the image of God is going to rule this earth. एक तरफ उसकी अंतरंग सहभागिता उसके लोगों के साथ दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी महिमा राज्य करेगी. He will show his glory. वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा. I say this again. मैं फिर से कहता हूं, The will of God in this last days, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा, it is to show his glory, his nature, his character through you and me to this world. उसका स्वभाव और उसका चरित्र जो है वो आपके और मेरे द्वारा इस दुनिया के अंतिम समय में लोगों को दिखाना, उन पर प्रकट करना. So that before the world sees Jesus coming in the midair, they will see Jesus in you and in me. ताकि इसके पहले कि दुनिया और दुनिया के लोग यीशु मसीह को दूसरे आगमन में देखें, उसके पहले वो यीशु मसीह को आप में और मुझ में देखें. You know what is really going to happen, Pastor? पास्टर, आप जानते हैं सचमुच में क्या होने जा रहा है? All believers, you know what is going to happen? Preachers, आप सब विश्वासी आप जानते हैं आने वाले समय में क्या होने जा रहा है? preachers, you know what is going to happen? प्रचारक, आप जानते हैं क्या होने वाला है? You are not going to preach a sermon, you are going to live a sermon. ओह, आप सिर्फ प्रचार करने वाले नहीं होंगे, लेकिन एक जीवित प्रचार होके जिएंगे. Yes, your life will be a sermon. आपका जीवन एक प्रचार होएगा. Your tongue will not talk about Christ, but your life will show Christ. आपकी जुबान जो है वो यीशु के बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन आपका जीवन जो है वो यीशु के बारे में बताएगा. What people hear, they will not remember much. What they see, they will remember forever. आप जो कहेंगे लोग उसको ज्यादा याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो आप में देखेंगे उसको याद रखेंगे. Christ in you is the hope of glory for this world. मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में है, और वो मसीह जो है इस दुनिया के लिए आशा है, महिमा है. Christ in you and through you will save this world. मसीह जो आप में है और आपके द्वारा होएगा वो इस दुनिया को बचाएगा. Persecution may come, all kinds of difficulties may come, it will not affect you. The more and more the glory of God will shine through you. सताव आएगा, यातनाएं आएंगी, वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसमें और ज्यादा मसीह की महिमा दिखाई देगी. So go on this line. इस लाइन में आगे जाएं. Seek the face of God. परमेश्वर के चेहरे को खोजें. Say, Lord, let Christ be formed in me. और कहे, प्रभु होने दे कि मसीह मुझ में दिखाई दे, बने. Yes, let Christ be revealed in me, glorified in me. हाँ, होने दे कि मसीह मुझ पे प्रकट होए, मेरे अंदर महिमा दिखाए, मेरे से महिमा मिले. Fill me, Lord, with your fullness. अपनी परिपूर्णता से मुझे भर दें. Let your glory be revealed in me, Lord. प्रभु होने दे कि आपकी महिमा मुझ पर प्रकट होए. I don't desire anything else except your glory, Lord. प्रभु मैं इससे ज्यादा और किसी बात की इच्छा नहीं करता हूं, आपकी महिमा मुझ पर प्रकट होए. Now listen, I'm going to tell you something important. अब सुने ध्यान से, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं. And only those who go on this line seeking God for his glory, to reveal his glory, those people will be built. और वे लोग जो इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए खोजेंगे, वे लोग इसमें पाएंगे. They will be built by God. वे परमेश्वर के द्वारा बनाए जाएंगे. Those who seek their own profit, those who seek their own benefit, those who seek their own glory will fade away slowly. वे लोग जो अपना लाभ देखेंगे, वे लोग जो अपने लाभ की बातों पर ध्यान देंगे, अपना करेंगे, वे नहीं होंगे. They will fade away. वे धुंधला जाएंगे. Those who run after preachers, pastors, those who run after prophets for anointing, they will also get confused. They will also start fading away. वे लोग जो पास्टर्स के, प्रॉफिट के,
प्रचारकों के पीछे पीछे भागेंगे आशीष के लिए, भविष्यवाणी के लिए, वे भी धुंधले पड़ जाएंगे। It is not the time to run after preachers and prophets. ये समय पास्टर्स और प्रीचर और प्रॉफिट्स के पीछे भागने का नहीं है। There are a lot of false prophets in the market today. Christian market. क्योंकि आज मसीही बाजार में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। Lot of false signs and wonders. बहुत से झूठे चिन्ह और चमत्कार। Jesus said the tree will be made known by its fruit. यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। Not by gifts, not by talents, not by supernatural all manifestations. अपने गुणों से, अपने फलों से, अपने गुणों से, अपने टैलेंट से पेड़ नहीं पहचाना जाएगा। Not by chak. No. वो चक जो है उससे नहीं पहचाना जाएगा। All this outward show, money talk, all these things will fade away. ये सब जो बाहरी प्रदर्शन है और पैसे की बातें जो है ये सब धुंधला जाएंगी। All false miracles will fade away. ये सारे झूठे आश्चर्यक्रम, नकली आश्चर्यक्रम धुंधला जाएंगे। The tree is made known by its fruit. पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। See the nature of Jesus in a preacher. हाँ, यीशु मसीह के स्वभाव को प्रचारक में देखें। See the character of Jesus in a person. एक व्यक्ति में देखें यीशु मसीह का स्वभाव है या नहीं। Do you think all the preachers love you who come to your city to preach? हाँ, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके शहर में जितने प्रचारक आते वे सब आपसे प्यार करते? No. They love your money. हाँ, नहीं, वे आपके पैसे से प्यार करते हैं। Or they want partners for their ministry. क्योंकि वे अपनी सेवकाई के लिए सहयोगी चाहते हैं। Very few people come who want to pour their lives for your sake. बहुत थोड़े होते हैं जो आपके जीवन के लिए अपना जीवन उंडेल देते हैं। Who want to be spend for you. जो अपने आप को आपके लिए खर्च कर देना चाहते हैं। And खर्च होते हैं, right? और खुद भी खर्च होते हैं और खर्च कर देते हैं। Spend and be spent. हाँ, खर्च भी होते हैं और खर्च भी करते हैं। Who give away their life for the life of others. जो दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन दे देते हैं। The central nature of God. परमेश्वर का जो केंद्रीय स्वभाव है is his overflowing love. और वो है उसका उमंडता हुआ प्यार, which is shown in giving his life even by dying for them. हाँ, जो दिखाई दिया लोगों के लिए जीवन देने में, यहां तक कि वो लोगों के लिए मर गया। Giving his life to others even by his death. हाँ, अपनी मृत्यु के द्वारा अपना जीवन लोगों को देने के द्वारा। That is the nature of God. वो है परमेश्वर का स्वभाव। Covetousness is evil and lust. लालच वो बुराई है और लालसा है। Mercy always gives. दया हमेशा देती है। So when preachers come, maybe they are famous, maybe miracles are happening through them, but watch the fruit, the nature of Christ in them. Watch their fruit, watch their life. Sorry. When preachers come, watch their life, watch their nature, watch their character, see the fruit in them. जब प्रचारक आते हैं तो आप उनका जीवन देखें, उनका चरित्र देखें, उनका स्वभाव देखें और फिर देखें क्या मसीह है या नहीं है। Don't be carried away because they are famous because of miracles. बहाव में ना बह जाएं इसीलिए कि वे बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हैं। Oh, because they get crowd. क्योंकि उनके पास भीड़ आती है। Just because crowd is coming doesn't mean a person is genuine. हाँ, भीड़, बड़ी भीड़ आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति असली है। Because a person is getting revelation, prophecy, miracles, he is genuine. हाँ, यदि वो व्यक्ति को एक भविष्यवाणी मिल रही है, प्रकाशन मिल रहा है, तो वो व्यक्ति असली है। Even a person is having presence of God, anointing, he is genuine. हाँ, ऐसा भी नहीं कि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है और परमेश्वर की अभिषेक है,
तो वो व्यक्ति भी असली है। No, see the nature of Jesus in them. हाँ, उनमें आप यीशु मसीह का स्वभाव देखें। Many churches, many pastors in India are deceived by false preachers coming in from some other countries, deceiving them. हाँ, भारत में बहुत से लोग धोखा खा गए इसी प्रकार के प्रचारकों और पास्टर्स के द्वारा। Judas Iscariot had the anointing, but he betrayed Jesus. यहूदा इस्करियोती के पास अभिषेक था, लेकिन उसने यीशु मसीह को धोखा दिया। Balaam had visions of God, but he deceived people. बलाम के पास परमेश्वर का दर्शन था, लेकिन उसने लोगों को धोखा दिया। Israel had the presence of God in the wilderness, but God was not happy with them. इज़राइल के पास मरुस्थल में, जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। Lucifer was anointed cherub, but he fell very badly. लूसीफर अभिषिक्त करूबीम था, लेकिन वो बुरी तरह से गिर गया। It is not these outward things, it is the nature of Jesus Christ that has to be seen. ये जो बाहरी रूप से दिखाई देता है वो बात मायने नहीं रखती है, लेकिन जिसके अंदर मसीह का चरित्र और स्वभाव है वो बात है। That is what glorifies God. वो बात है जो परमेश्वर के लिए महिमा को लेकर आती है। And that is what reveals God's glory. और यही बात है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। God is going to purify his church in this last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, He is पवित्र going to करेगा। expose these false preachers and pastors. और परमेश्वर इन अंतिम दिनों में इन झूठे प्रचारक और नबियों को खुलासा कर देगा। Believers are going to wake up. They are going to discern who is right and who is wrong. विश्वासी जो हैं वे जाग जाएंगे और पहचानने लगेंगे कौन सच्चा है और कौन गलत है। God is going to pour his Holy Spirit on the churches. और परमेश्वर कलीसियाओं पे पवित्र आत्मा को उंडेल देगा। Believers are going to become passionate for Jesus Christ. विश्वासी मसीह के लिए जुनून से भर जाएंगे। They will long for Jesus. वे यीशु मसीह के लिए लालसा करेंगे। They will long for his return. उसके दूसरे आगमन की लालसा करेंगे। They will desire power to win souls. और आत्माओं को जीतने के लिए सामर्थ की लालसा करेंगे। And Jesus' nature will be revealed to them. और फिर यीशु मसीह का स्वभाव उनके द्वारा से दिखाई देगा। Please listen. मेहरबानी से सुने। The end time revival that is coming. अंतिम समय की जागृति जो आ रही है, It is not going to come through one big man here, one big man there, one famous man there. No, it is going to come through the body of Christ, through the believers. वो अंतिम समय की जागृति किसी एक व्यक्ति से यहाँ या वहां, एक बड़ा प्रचारक, एक बड़ा पास्टर, उसके द्वारा नहीं आएगी, लेकिन अंतिम समय की जागृति मसीह की देह के द्वारा इस संसार में आएगी। Oh, it's going to be a body ministry through the church of Jesus Christ. मसीह की कलीसिया जो मसीह की देह है उसके द्वारा आएगी। Brother, get ready. भाई तैयार हो जाएं। Sister, get ready. Children, get ready. बहन तैयार हो जाएं, बच्चे तैयार हो जाएं। God will anoint you. God will use you mightily. परमेश्वर आपको अभिषेक देगा और आपको सामर्थ से इस्तेमाल करेगा। You may be a simple person. हो सकता आप साधारण से व्यक्ति हो, But God will fill you as he filled Paul, Peter, John, James, and use you mightily. लेकिन परमेश्वर जब आपको सामर्थ से भरेगा तो ऐसा भरेगा जैसा परमेश्वर ने पौलुस को, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को भरा था। He'll use you mightily. और आपको सामर्थ्य में इस्तेमाल करेगा। Oh, we are going to see revival greater than the Acts of Apostles. हम प्रेरित के काम से भी बढ़कर जागृति को देखेंगे। Nations will come to Christ. और देश के देश मसीह को जानेंगे। How? कैसे? Not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होएगा। God is going to do it. परमेश्वर इस कार्य को करेगा। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। First, he will possess you, he will fill you. Next, he will take the world through you.
और पहले वो आप पर कब्जा करेगा, आपको भरेगा, और फिर उसके बाद आपके द्वारा वो दुनिया में काम करेगा। This is the will of God in these last days. अंतिम दिनों में ये है परमेश्वर की इच्छा। He will possess your spirit, soul and body. He will captivate you. वो आपकी आत्मा, प्राण और देह को कब्जे में ले लेगा और आपको अपने वश में ले लेगा। He will work through you, show his glory through you. और फिर आपके द्वारा काम करेगा और आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। Millions will come to Christ through you. और आपके द्वारा लाखों लोग मसीह के पास आएंगे। This is the will of God in these last days. इन अंतिम दिनों में ये है परमेश्वर की इच्छा। Go on this line. इस लाइन में आगे जाएं, You will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Go on any other track. आप किसी दूसरे रास्ते में जाएंगे, You will fail. आप असफल हो जाएंगे। They that do the will of God will abide forever. जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वे सदा सदा उसके साथ बने रहते हैं। Now let me take you to the heart of the message. आइए मैं अब आपको संदेश के हृदय में ले जाऊं। Second part of the message. संदेश के दूसरे हिस्से में। This is very, very important. और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Till now we studied that God will fill us with his glory. और अभी तक हमने सीखा कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा से भरेगा। And he will reveal his glory, his nature, his character through us. और वो हमको अपनी महिमा से, अपने चरित्र, अपने स्वभाव से भरेगा। He will reveal his nature, character through us. और वो अपना चरित्र और स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट करेगा। His wisdom and power. उसकी बुद्धि और सामर्थ। He will do this through us. और वो हमारे द्वारा ये काम करेगा। Now we'll go to the second part. अब हम दूसरे हिस्से में जाएं। How will he do this through us? ये बात वो हमारे द्वारा कैसे करेगा? How will he change us? वो हमें कैसे बदलेगा? How will he possess us? वो हमको अपने वश में कैसे करेगा? How will he transform us, fill us? हाँ, वो कैसे हमें बदलेगा, परिवर्तित करेगा और भरेगा? How will he fill us with his fullness? और वो अपनी भरपूरी से हमें कैसे भरपूर करेगा? How will he do it? वो इस बात को कैसे करेगा? How will he reveal his glory through us? वो हमारे द्वारा अपनी महिमा को कैसे प्रकट करेगा? Till now we heard that he will reveal his glory. Everyone was excited. Yes, I want to become like that. हाँ, अभी तक तो हमने सुना कि वो हमको अपनी महिमा से भरेगा और हम सब बहुत उत्सुक थे कि ऐसा करेगा, लेकिन करेगा कैसे वो? How will he do it? वो उस बात को करेगा कैसे? Now listen carefully. If you want to become a vessel of his glory in these last days, इन अंतिम दिनों में यदि आप उसकी महिमा के पात्र बनना चाहते हैं तो अब इस बात को बड़े ध्यान से you want सुनें। God to reveal his glory through you. Listen now. अब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे तो बड़े ध्यान से सुने। How will he reveal his glory through you? वो आपके द्वारा अपनी महिमा को कैसे प्रकट करेगा? How will he fill you with his glory? और वो कैसे अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा? Answer is very simple. उत्तर बहुत सरल, साधारण है। Through brokenness. टूटेपन के द्वारा। He will break you. वो आपको तोड़ेगा। He will destroy the old and establish the new. और वो पुराने को बिल्कुल तोड़ देगा और फिर नए को बनाएगा। Old wine, old bottle will go. New wine in new bottle. पुराने मशक, पुराना दाखरस चले जाएगा और नया मशक और नया दाखरस आएगा। Old thinking, old style, old show off, old nature, everything has to go. पुराना सब कुछ जो है, वो पुरानी स्टाइल, पुराना तरीका, पुराना ढंग, वो सब कुछ चले जाएगा। ओ ब्रदर, ये मेरी स्टाइल है ब्रदर, सब कुछ चला जाएगा। भाई, ये मेरी स्टाइल है, मेरा तरीका है, ये सब कुछ चले जाएगा। Everything, God will bring you to ground zero. परमेश्वर हर एक बात को नीचे जमीन पे शून्य कर देगा। He will allow you to go through brokenness.
He will allow you to go through brokenness. If you are the candidate to reveal his glory, then be sure the path is through brokenness. यदि आप इस बात के उम्मीदवार हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करे, तब फिर वो आपको इस टूटन में, इस टूटने वाली प्रोसेस, प्रक्रिया में लेके जाएगा. Yes, everyone wants God's glory to be revealed through them. हाँ, सब लोग चाहते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होए. Are you willing to be broken, brother? लेकिन भाई, आप टूटने के लिए तैयार हैं? Sister, are you willing to be broken? बहन, आप टूटे जाने के लिए तैयार हैं? Many people, you are already in the process of brokenness. आप में से बहुत से लोग हैं जो इस टूटने की प्रक्रिया में हैं. Brokenness in mind. मन में, मस्तिष्क में टूटना. Oh, so much of negative attack, so much of fearful thoughts, so much of sometimes unclean thoughts make you discouraged. You go cry to God, cry to God. हाँ, बहुत समय नकारात्मक विचार आते हैं, बहुत समय डर के विचार आते हैं, बहुत समय बुरे विचार, गंदे विचार आते हैं, और आप उसके कारण निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं. Sometimes sickness in the body, attacks in the body, some problem, physical problem in the body. कभी कभी शरीर में बीमारी आती है, कभी कभी शरीर पे आक्रमण होता है, कभी कभी निर्बलता, दुर्बलता शरीर में आ जाती है. So many pastors are so sweet. Diabetes. Okay, so much trouble. कभी कभी बहुत सारे पास्टर्स जो होते हैं वे बहुत मीठे होते हैं. डायबिटीज से बहुत सारी बातें होती हैं. Weakness in body, brokenness. शरीर में निर्बलता, दुर्बलता. Some people financial problem, one after the other. One side ministry is good, but financial problem. कुछ लोग हैं जो आर्थिक परेशानियों से होके गुजरते हैं. एक ठीक होता है, लेकिन फिर दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है. Sometimes children's problem, children are not settled. Something with their child, it breaks you. और कभी कभी बच्चों के कारण समस्या आ जाती है. कुछ बातें ऐसी हो जाती है बच्चों की, वो हमको बिल्कुल तोड़ देती है. Sometimes everything will be all right, but one troublemaker will be in the church. One troublemaker will be in the committee. कभी कभी सब बातें बिल्कुल अच्छी होती हैं, लेकिन कोई एक जन होएगा जो चर्च में या कमेटी में परेशान करने वाला हो. Oh, some or the other thing to break you. हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको तोड़ेगी. Oh, all the time being broken. और हर समय टूटा रहना. Being broken. टूटने की प्रक्रिया में. Listen, please listen. मेहरबानी से सुने. In between, बीच के दरमियान, there are glimpses of the glory of God. हाँ, महिमा की झलक दिखाई देगी. Oh, glimpses of revelation, glimpses of vision, glimpses of miracles, glimpses of miracles. प्रकाशन की झलक दिखाई देगी, या फिर दूसरी बातों की झलक दिखाएगी. कुछ उत्तर आएंगे, उसकी झलक दिखाई देगी. कुछ दूसरी बातों की झलक दिखाई देगी. But then afterwards, again brokenness. लेकिन उसके बाद फिर से वही टूटा हुआपन. Again little miracles, little glory, little answer. Again more brokenness. लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी महिमा दिखाई दे रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, आशीषें आ रही है, लेकिन फिर वही टूटन. Why? क्यों? Because God wants to destroy the human vessel and transform you into a divine vessel. क्योंकि परमेश्वर ये मानवीय पात्र जो है उसको पूरी तौर से तोड़कर जो ईश्वरीय है, दैवीय है, उस पात्र को आप में लाना चाहता है. Yes, human vessel will go, you will turn into a divine vessel. मनुष्य पात्र चले जाएगा और ईश्वरीय पात्र में आप आ जाएंगे. Why? क्यों? Because only the divine vessel can hold the glory of God's fullness. क्योंकि सिर्फ ईश्वरीय पात्र ही परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता को संभाल सकेंगे. Only a divine vessel can hold the glory of the fullness of God.
क्योंकि सिर्फ ईश्वरीय पात्र जो है वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की परिपूर्णता को संभाल पाएंगे। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। Suppose your life is like an earthen pot. हाँ, मान लीजिए आपका जीवन जो है वो एक शारीरिक मट्टी का है। Pot, मट्टी का vessel. मट्टी का पात्र है। And Jesus is breaking that. और यीशु मसीह उसको तोड़ रहा है। He's keeping on breaking. वो बार बार तोड़ रहा है। And pieces are being broken. Again he takes one piece, breaks that piece also. हाँ, फिर तोड़ता है और फिर एक टुकड़ा उठाता है, फिर से उसी को तोड़ता है। Again takes another piece, breaks. He keeps on breaking that pot. हाँ, फिर से उठाता है और फिर बार बार उसी को तोड़ता रहता है। He keeps on breaking all the pieces also. Broken pieces also he'll break. हाँ, जहां तक कि जितने टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, उनको भी वो बार बार तोड़ता है। You know what falls on the ground? आप जानते हैं क्या चीज है जो जमीन पे गिरती है? All the dust of that pot. उस पात्र की धूल, dust, मिट्टी, dust. मिट्टी। Then he takes that dust and creates a new man. हाँ, तब वो फिर से उस मिट्टी को लेता है और फिर नया बनाता है। He out of dust he created Adam. He destroyed that vessel. Now he takes the dust again and creates second Adam. He creates in his own image, person divine like Jesus Christ. उसने मट्टी से आदम को बनाया था जो टूट गया, खराब हो गया, लेकिन अब यीशु मसीह फिर से उसी मट्टी को लेके एक नया सुंदर पात्र बना रहा है जो परमेश्वर के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Adam's nature is broken. आदम का स्वभाव टूट गया, Jesus' nature is formed. यीशु मसीह का स्वभाव बन गया। Brokenness is the process he will use to make you a vessel, a divine vessel of his glory. टूटने की ही प्रक्रिया है जिसमें आप एक ईश्वरीय पात्र बनेंगे, यीशु मसीह का पात्र बनेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव चरित्र का। To reveal his glory. उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। The glory of the fullness of God in you. परमेश्वर की परिपूर्णता की महिमा आप में और आपके द्वारा। You will see this in the life of Joseph. ये बात आप यूसुफ के जीवन में पाएंगे। God broke him. परमेश्वर ने तोड़ा। Again revealed little glimpse of glory. और फिर थोड़ी सी महिमा उसके द्वारा प्रकट। Again broke him. फिर तोड़ा। Again revealed little glory. फिर थोड़ी सी महिमा दिखाया। The process went on. और ये प्रक्रिया बढ़ती गई। Till finally Joseph was destroyed. Only God was in his place. तब तक ये प्रक्रिया चलती रही जब तक यूसुफ खुद पूरी तौर से टूट नहीं गया। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। He went to take care of his brothers. वो अपने भाइयों को देखने के लिए, उनका कुशल पूछने के लिए गया था। They caught him, removed his coat. और उन्होंने उसके कोट को उतार दिया। And put him in the pit. और फिर उसको गड्ढे में डाल दिया। He was father's pet. Now he is in the pit. वो पिता का दुलारा था, अब गड्ढे में पड़ा है। He is in that pit, crying out, crying out, crying out. वो उस गड्ढे में पड़ा है और पुकार रहा है, रो रहा है, दुहाई दे रहा है। His brokenness starts from the pit. उसका टूटना उस गड्ढे में से शुरू हुआ। His brokenness starts from there. उसका टूटना उस गड्ढे में से शुरू हुआ। And then what happens? और फिर उसके बाद क्या हुआ? He's sold as a slave. और वो उसके बाद गुलाम के तौर पे बेच दिया गया। Then he's slave in Potiphar's house. और फिर उसके बाद वो पोतीफर के घर में गुलाम हो गया। One side he's being broken, another side he gets the glimpse of blessings. हाँ, एक तरफ वो टूट गया, गुलाम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आशीष देख रहा है। Because of him, house is blessed.
उसके कारण पोतीफर का घर आशीषित हो गया। Potiphar knows because of Joseph, everything is prosperous. पोतीफर जानता था कि यूसुफ के कारण सब बातों पे आशीष दिखाई दे रही है। Blessing is also there, temptation is also there. आशीष भी दिखाई दे रही है और परीक्षा भी दिखाई दे रही है। Again, God has to break him. अब परमेश्वर फिर से उसको तोड़ना चाहता Now है। he is in the jail, in the prison. अब वो देखिए, वो बंदी गृह में है। Again, he is blessed. फिर से आशीष। Blessing is there. Now revelation is there. हाँ, आशीष है और प्रकाशन भी है। He is interpreting other people's dreams. वो दूसरों के स्वप्नों का उत्तर बता रहा है। Blessings is there, revelation is there. आशीष भी है, प्रकाशन भी है। God has to break him again. परमेश्वर को फिर से उसे तोड़ना है। Because the butler who went to be with to serve the king forgot Joseph. क्योंकि जो खाना बनाने वाला था, पकाने हारा था, वो यूसुफ को भूल गया। The cupbearer. हाँ, पिलाने वाला, दाखमधु पिलाने वाला। Joseph interpreted his dream. यूसुफ ने पियाऊ की स्वप्न का वो अर्थ बताया था। And he said, when you go to the king, remember me. और कहा, जब तू राजा के पास जाएगा तो मुझे स्मरण रखना। See, for no reason I'm put in the jail. देख, मैं कोई कारण भी नहीं था, फिर भी बंदी He गृह told में। his sad story to this man. इस व्यक्ति को उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। Please help me, please help me. मेहरबानी से मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना। God saw that. परमेश्वर ने उस बात को देखा। Oh, still Joseph is depending on man. कि परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ अभी भी मनुष्य पर निर्भर है। He is trying to use some trick. हाँ, अभी भी कुछ युक्ति भिड़ा रहा है। Again break him. फिर तोड़ दिया। The butler forgot Joseph for 2 years. और उस पियाऊ ने 2 साल तक यूसुफ को भूल गया। Again Joseph had to be in the prison. फिर से यूसुफ को बंदी गृह में रहना पड़ा। All his human tricks, human tactics, everything was gone. Human vessel was gone. हाँ, उसकी सारी मानवीय बुद्धि, युक्तियां, सब खत्म हो गया, चला गया। God knew this human vessel is broken completely. Now the divine vessel is ready. हाँ, परमेश्वर जान गया कि ये मानवीय पात्र, ये मानवीय चीज जो है अब चली गई और ये पूरी तौर से ईश्वरीय पात्र होने के लिए तैयार है। Then he gave the king the dream. तब परमेश्वर ने राजा को स्वप्न दिया। And nobody is there to interpret. और कोई नहीं था जो अर्थ बताता। And you know the story, Joseph was brought. हाँ, आपको मालूम है, यूसुफ को बुलवाया गया। And the king said, और फिर राजा ने कहा, I heard you are able to interpret dreams. मुझे मालूम पड़ा है कि तू स्वप्नों का अर्थ बता सकता है And tell the meaning. और उसका मतलब भी बता सकता है। Will you do that for me? क्या तू मेरे लिए इस काम को करेगा? Joseph said, यूसुफ ने कहा, I am not able. मैं अर्थ बताने के योग्य नहीं हूं। God is able to show you the dream and give you the right answer. परमेश्वर योग्य है जो स्वप्न का अर्थ बताएगा और तेरे को इस बात पर प्रकट करेगा। Yes, I am not able. मैं तो योग्य नहीं हूं, But God is able. लेकिन परमेश्वर योग्य है। Not I, but Christ मैं lives नहीं। in me. मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। Divine vessel is formed. ओ, ईश्वरीय पात्र तैयार। Human vessel is gone. मानवीय पात्र चला गया। Not I. मैं नहीं, I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। Nothing of old is in me. पुराना मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। No human tricks, no human ways, no all that human flavor. Everything of old is gone. कोई भी मानवीय तरीका, कोई भी मानवीय युक्ति, कोई भी मानवीय योजना अब नहीं है। पुराना सब कुछ चला गया है। Depending on people, depending on foreign, depending on everything, depending on people and everything, tricks, everything is gone. हाँ, लोगों पे निर्भर होना, विदेशी पैसे पे निर्भर होना या किसी दूसरी योजना पे, दूसरे तरीके पे निर्भर होना, सब कुछ चला गया। I have nothing.
मेरे पास कुछ नहीं है। Only Christ lives in me. I depend only on Christ. अब सिर्फ यीशु मसीह मुझ में है और मैं सिर्फ यीशु पर निर्भर हूं। All I have is Christ. यदि मेरे पास कुछ है तो वो सिर्फ यीशु, Nothing else. Everything is gone. और उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ चला गया। Everything I count dust and dung and loss. और मैं सब बातों को कूड़ा कचरा समझता हूं। I have only Christ. मेरे पास सिर्फ मसीह है। The vessel is prepared. पात्र तैयार है। God's glory was revealed through Joseph. ओ, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। Nation was fed. पूरा देश खिलाया गया। Not only that, nations were fed. सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे देश खिलाए गए। Jacob and all his sons came, 70 people. हाँ, याकूब और उसके सारे बच्चे जो 70 के करीब थे वे आए। They were preserved. और उनको संभाल के रखा गया। Why? क्यों? Because through them, Messiah would come, Jesus Christ would come. क्योंकि उनके द्वारा मसीहा यीशु मसीह आएगा। Jesus Christ will always be revealed in and through a broken vessel. हर समय यीशु मसीह प्रकट होएगा, दिखाई देगा एक टूटे हुए पात्र में। When human vessel is gone, when divine vessel is prepared, in that ministry, Jesus is manifested. जब मानवीय पात्र टूट के चला जाएगा, ईश्वरीय पात्र बन जाएगा, तब उस सेवकाई में यीशु मसीह और उसकी महिमा प्रकट होगी। In the person's life, the nature of Jesus is seen. In the ministry, Jesus is manifested, revealed. व्यक्ति में यीशु मसीह का चरित्र दिखाई देगा और सेवकाई में यीशु मसीह दिखाई देगा। Amen. आमीन। The end of all things is the glory of God. सब बातों का अंत है परमेश्वर की महिमा। God wants to close this age. He wants to close this church age by the revelation of Jesus Christ. परमेश्वर इस युग को, इस कलीसिया युग को यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करने के द्वारा समाप्त करना चाहता है। Christ will be revealed in his people, through his church, in the nations, everywhere, Jesus Christ. मसीह जो है वो मसीह के लोगों में, विश्वासी में, मसीह की कलीसिया में, मसीह की कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में प्रकट होएगा और कलीसिया और विश्वासियों के द्वारा प्रकट होएगा। Many people talk many things about the second coming of Jesus. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत से लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। Maybe they are all true, all calculations, other things, manifestation, maybe all, a lot of things. हो सकता है उनका जो मूल्यांकन है, अवलोकन है, बहुत सारी बातें ठीक होंगी, बहुत सारी बातें। But the central thing about the coming of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन की केंद्रीय बात जो है, his glory will be revealed in and through his people. उसकी महिमा उसके लोगों में और उसके लोगों के द्वारा प्रकट होगी। Jesus will be seen. यीशु मसीह दिखाई देगा। And the heavenly Father will be satisfied. स्वर्गीय पिता खुश हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। He will say, I sowed one son, now I am seeing millions of sons like Jesus. और वो कहेगा मैंने एक बेटे को दिया और उसमें लाखों करोड़ों को पा रहा। The life of Jesus will come to fruition. The life of Jesus will come to fruition, fruit. Okay, मसीह का जीवन जो है वो फलवंत होएगा। Amen. Everywhere Jesus, Amen. Harvest of Jesus, the Father will reap the harvest of Jesus. हर जगह मसीह यीशु, पिता जो है मसीह की फसल को काटेगा। And the Father will be glorified because in him the Father is well pleased. और परमेश्वर खुश हो जाएगा क्योंकि लिखा है उसमें परमेश्वर खुश हो गया। Oh, may the Lord bless this message to our hearts. होने दें कि परमेश्वर आज ये संदेश हमारे हृदयों में आशीषित करे। We'll spend some time in prayer.
हम थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We have a lot of time. हमारे पास बहुत समय है, So maybe another 3 to 5 minutes we will pray. हम 3 से 5 मिनट तक प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद। If God has spoken through you through this message, यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है, if there is a witness in your heart, yes, this is true, और यदि आपका हृदय गवाही दे रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, and you desire God's glory to be revealed in and through you, और आपके अंदर इच्छा है कि आप में और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, and you are willing to be broken and to become a divine vessel, और आप तैयार हैं टूटने के लिए और एक ईश्वरीय पात्र बनने के लिए, so that God's glory will be revealed in you, ताकि परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट होए, the glory of the fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता की महिमा। Oh, then lay your hands on your chest. तब अपने हाथ को अपने हृदय पे रखें, Keep your hand on your chest अपना हाथ अपने हृदय पे रखें and say, Lord, here I am. और कहे प्रभु मैं यहाँ हूँ, Lord, touch me, touch my life. प्रभु मुझे छुए, मेरे जीवन को छुए। I want your glory to be revealed in and through me. मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा और मुझ में आपकी महिमा दिखाई दे, Through my family, मेरे परिवार के द्वारा, in our church and through our church. मेरी कलीसिया में, मेरी कलीसिया के द्वारा Reveal your nature, अपने स्वभाव को प्रकट करें, reveal your character, अपने चरित्र को प्रकट करें, reveal your power, अपनी सामर्थ को प्रकट करें, reveal your wisdom. अपनी बुद्धि को प्रकट करें। Lord, touch me, Lord. प्रभु मुझे स्पर्श करें, I am willing to be broken. मैं टूटने के लिए तैयार हूं। Show me glimpses of glory. मुझे महिमा की झलक दिखाएं And then finally fill me with your glory. और अंततः मुझे अपनी महिमा से भर दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Keep praying for yourself. अपने आप के लिए प्रार्थना करते रहें। Let me pray for you right रहें। now. और मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Blessed Jesus. धन्य यीशु, Oh, my blessed Jesus. मेरे आशीषित धन्य यीशु, I thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए मैं आपको धन्यवाद I देता हूं thank you for giving us a clear word. और हमें एक स्पष्ट संदेश देने के लिए There धन्यवाद। are hundreds who are going through brokenness. और सैकड़ों हैं जो टूटने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। The process has already begun in many people. बहुत से लोगों में वो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। We submit ourselves to you, Lord. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं And we pray, Jesus. और प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, Everything that is of Adam, take it away from us. हर एक बात जो आदम की है उसको हमसे ले ले। Everything that is false in our life, unclean in our life, remove it, O Lord. हर एक वो बात जो हमारे जीवन में झूठी है, गलत है, नकली है, उसको हमारे अंदर से निकाल दे। All human tricks, human ways, human manipulation, take it away. हर एक मानवीय युक्ति और उलट फेर और हर एक बात जो मनुष्य की रीति से है उसको निकाल दे प्रभु यीशु। Root out all carnal nature and lust and selfish nature. हर एक शारीरिक स्वभाव और प्रभु हर एक लालसा अभिलाषा जो मानवीय है हमारे जीवन में उसको जड़ से निकाल दें। Root out self and selfishness. स्वार्थ और स्वार्थीपन को भी जड़ से निकाल दें। Give us a heart for God, heart for people. हमें परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए एक हृदय दे दे। A heart which will be willing to give life and love to the people around us. ऐसा हृदय जो लोगों के लिए और जो लोग चारों तरफ हमारे हैं उनके लिए जीवन देने के लिए ऐसा हृदय दे दे। Let our self-life be crucified so that not I but Christ will live in us. हमारा स्वार्थी जीवन जो है वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाए ताकि हम नहीं लेकिन मसीह हम में जीवित होए। Let us not do anything for our selfish benefit, self-benefit. Let us always do things for God's benefit and people's benefit. प्रभु हम अपने स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के तरक्की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करें लेकिन सिर्फ परमेश्वर आपके और लोगों के भले के लिए करें। Purify our ways, purify our thinking.
हमारी सोच को पवित्र कर दे, हमारे तरीकों को पवित्र कर दे। All those human smartness, human cunningness, oh foolishness, take it away, Lord. प्रभु हर एक मानवीय स्मार्टनेस जो है, हर एक मानवीय सोच तरीका जो है, उसको हमारे अंदर से जड़ से निकाल दे। Everything of human man, take it away. Put everything of God in us. प्रभु हर एक मानवीय बात जो है उसको हमारे अंदर से जड़ से निकाल दे, और जो कुछ परमेश्वर का है, आपका है, वो हमारे अंदर रख दे। Purify us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर दे, Give us your nature. अपना स्वभाव दे दे। Let Christ be formed in us. होने दे कि मसीह हमारे अंदर अपना रूप ले His ले, nature, His beauty, His purity. उसका स्वभाव, उसकी पवित्रता, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा। Oh, Jesus, let people see, let our family members and others, relatives, friends, neighbors see Jesus in us. होने दे प्रभु कि हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, सब लोग हमारे अंदर यीशु मसीह और उसके स्वभाव को देखें। Let us not simply talk the gospel, but let us live the gospel. प्रभु सहायता करें कि हम सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने वाले नहीं, लेकिन हम खुद एक सुसमाचार बन के जिए। Oh, let your Holy Spirit come upon us right now. इसी समय आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतारा है। Change our nature. हमारे स्वभाव को बदल दें, Fill us, Lord, with your fullness. और अपनी परिपूर्णता से हमें भरपूर कर Lay दें। your hands upon every one of us. हम में से प्रत्येक पर अपने हाथ को रख दें। Deliver us from love of money. पैसे के लालच से छुटकारा दे दे प्रभु यीशु। Deliver us from love of the world and material love. और भौतिक और सांसारिक लालच से छुटकारा दे दे। Remove the love of the world. दुनिया का जो प्यार है, लगाव है, उससे छुटकारा दे दे। Remove all Hollywood, Bollywood type of style from the church and ministry. प्रभु हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया की जो स्टाइल है, उससे चर्च को छुटकारा दे दे। Let us not use worldly tricks and gimmicks in the church. Purify our church, Lord. हम कलीसिया में दुनियावी तौर तरीके को और दुनियावी युक्तियों को इस्तेमाल नहीं करें। छुड़ा दे हमें इन सब चीजों। Oh, let our churches be filled with the Holy Ghost and fire in Jesus' name. यीशु के नाम से कलीसिया पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की आग से भर जाए। Give us the power to heal the sick, to cast out devils and to win souls. हमें सामर्थ्य दे कि हम बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। Lord, your disciples made the world upside down. Raise up people who will turn the world upside down. प्रभु आपके चेलों ने इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया था। अब फिर से एक बार ऐसे विश्वासियों को उठा के खड़ा करें जो इन दिनों में दुनिया को उलट पुलट कर दें। You will do that, Lord. You are going to raise up such people in many places. We thank you, Lord. आप करेंगे प्रभु यीशु, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में उठा के खड़ा करेंगे जो उलट पुलट कर देंगे। Oh, let your Holy Spirit come upon everybody. प्रभु हम सब पर आपका पवित्र आत्मा Let your उतारा, anointing come upon everybody. आपकी सामर्थ और अभिषेक हम सब पे उतारा Let है। healing come to those who need healing. जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई मिले। In the name of Jesus, I command every sickness, disease, work of the devil that is in the bodies of these people, depart from them by the roots now in Jesus' name. हर एक बीमारी, निर्बलता, रोग जो इन लोगों के शरीर में है, मैं प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इनके शरीरों में से दूर हो जाए। I rebuke you, every sickness and disease, work of the devil. Leave them now in Jesus' name. हर एक बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता, शैतान के कामों को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इनके शरीरों में से बाहर चली जाए। Every evil spirit, witchcraft power, loose them in Jesus' name. हर एक अंधकार की ताकत, शैतान के काम, जादू टोना की शक्ति यीशु के नाम से तेरी पकड़ टूट के चली जाए। I speak destruction to the work of the devil in their lives, in their bodies, in their minds, in their homes, in their finances, now in Jesus' name. लोगों के जीवन में, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के आसपास से, लोगों के फाइनेंस में, बिजनेस में, जहां कहीं भी शैतान के काम है, अंधकार की पकड़ है, यीशु के नाम से मैं उसको तोड़ के हुक्म देता हूं, चले In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से I set these people free. मैं यीशु के नाम से इन लोगों को आजाद कहता हूं। Lord, let your power rest upon them. प्रभु होने दे
आपकी सामर्थ इनके ऊपर राज्य करे। Lay your hands upon them. इन पर अपना हाथ रख दे। Let the fire of God come upon them. होने दे पवित्र आत्मा की आग इन पर उतर आए। Let healing come to them. होने दे कि चंगाई इनके जीवन Let में आए। many be healed tonight. आज रात बहुत से लोग चंगाई पाए। When they wake up in the morning, they should find themselves healed. जब वे सुबह उठें तो वे अपने आप को चंगा पाए। Let supernatural physical strength and healing come to them. होने दे कि प्रभु जी अलौकिक सामर्थ उनके शरीर में उतर आए। Whom the Son sets free is free indeed. जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र है। Set them free, Lord. प्रभु आप उन्हें आजाद कर दो। I pray for financial miracles for them. उनके लिए मैं आर्थिक आश्चर्य कर्म की प्रार्थना करता हूं। Blessings in their work, blessings in their job, blessings in their business. प्रभु उनके काम पे आशीष, उनकी नौकरी पे, उनके बिजनेस पे आशीष। Give them inward blessings and outward blessings. उन्हें अंदर भी आशीष दे और बाहर भी आशीष। Protect them from all evil, O Lord. प्रभु उनको हर एक बुराइयों से बचा ले। Every loss or trouble that has come because of this virus, take it away, Lord. Restore them, Lord Jesus. इस वायरस के द्वारा जो भी नुकसान हुआ है प्रभु जी, वो उनको वापस मिले और उससे उनको छुटकारा मिले। Bless everybody. हर एक को आशीष दे। Lord, finally we pray. पिता अंत में हम प्रार्थना करते हैं, Revive every church, revive every pastor, revive every believer, Lord. हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक कलीसिया को जागृत कर दें। From now on, let us walk in the spirit of revival. आज के बाद से हम इस जागृति में चलने वाले बने। Singing, praising, speaking in tongues, glorifying God all the time. प्रभु गाते हुए, रिजॉइस करते हुए, अन्य भाषा में बातें करते हुए, हर समय आप में आनंदित रहते हुए। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। As we are closing, everybody lift up your hands wherever you are. Speak in tongues loudly. हाँ, जैसे कि हम समाप्त कर रहे हैं, हर एक जन अपना हाथ ऊपर उठाए और अन्य अन्य भाषा में बातें करें। Wherever you are, lift up your hands, lift up your hands. आप जहां कहीं भी अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपने हाथ Pray in ऊपर the उठाएं। spirit, pray in the spirit for some time. थोड़े समय के लिए आत्मा में Oh, प्रार्थना hallelujah, 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 hallelujah. Pray in the spirit, pray in the spirit, pray. Rola basira la rabas. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Bless everybody, Lord. Bless everybody. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Everywhere move. In every nation move. Every country move. Every congregation move. Touch, revive, 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 Lord. Yes, Oh Lord, let your fire come upon Jesus. everybody. Yes, Heal, Jesus. Lord. Bless, Lord. Set free, Lord. Visit, Lord. Appear, Lord. Reveal yourself, O Lord. Oh, let the anointing come. Let the anointing come. Let the anointing come, Lord. Bless everybody. Amen, Pray in amen, tongues. Pray in amen. tongues. Another सब 30 लोग अन्य अन्य भाषा में, Lift up अन्य your अन्य hands. भाषा में Loudly pray in the spirit. Hallelujah. 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 Oh, let the anointing, let the glory of God come. Hallelujah, hallelujah. I pray everybody will become a vessel of glory. Everybody become a divine vessel. Thank you, thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Let Jesus. the glory Thank of the you, Lord. fullness of God be revealed. Amen. Thank you, Lord, thank you, mercy, thank you, mercy, Jesus. mercy, mercy. Glory to God. Lord, Yes, Jesus, I pray Lord. that you'll give many people a new beginning. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत से लोगों को नई शुरुआत दे दें And let everybody become a divine vessel और हर एक जन एक ईश्वरीय पात्र बने to reveal the glory of the fullness of God. ताकि परमेश्वर की भरपूरी की महिमा को प्रकट करे। Bless everybody, bless everybody. प्रत्येक को आशीष दे, प्रत्येक को आशीष दे। Bless all the dear ones who have put this entire conference together, Lord. और प्रभु इस एंटायर कॉन्फ्रेंस को जितने लोगों ने आयोजन किया उन सबको भी आशीष दे। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको Lord, देते we rejoice and thank you because revival is here. हैं। ओ हम रिजॉइस करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जागृति यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Rejoice. ओ आनंदित हों। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। Be blessed. आशीषित हों, Stay anointed. अभिषिक्त बने रहें Stay full. और परिपूर्ण बने The रहें। joy of the Lord is your strength. मसीह का आनंद आपका बल है God will reveal his glory in you and through you. और परमेश्वर अपनी महिमा को आप में और आपके द्वारा प्रकट करेगा He will fill this earth with the knowledge of the glory of God. और इस पृथ्वी को अपनी महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण कर देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen.
आमीन। My thanks to all the organizers and सारे friends आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद। of Jesus Christ Nagpur Ministry. फ्रेंड्स Thank you for having us. फ्रेंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट नागपुर, धन्यवाद हमें निमंत्रण Hallelujah. देने के लिए। Over to you. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड एस आर मनोज सर